So today we are going to do some extra questions and some theorems of chapter 10. I have written 2 questions on the board. So let me start with these 2 questions and then I'll take your queries. Your first question is this. You are given this figure and you are given that PS means the length of the tangent is 8 centimeter and we have to find out the perimeter of this triangle PQR. Here you may see that QR is also the tangent, PS is the tangent, PT is the tangent. तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट तो ये है that PS is equal to PT because the length of the tangent is always same from a point to a circle. So एक रिजल्ट तो आपका हो जाएगा that PS is equal to PT is equal to 8 centimeter. What else can be said in this question? Raise the hand, please. How can we find the perimeter of triangle PQR? PQR, this triangle. I must have all the 3 sides of the triangle to find out the perimeter. How will we find the perimeter? Think, think, and think. Let me give this point the name L. शायद इससे कुछ clear हो गया होगा आपको. The point of contact of the tangent QR is L. जल्दी से बताओ because time is less. If you want me to do, then tell me. If you are thinking, then also. Shall I continue? Yes, QL is equal to LR. तो नहीं होगा बेटा. QL is not equal to LR. Half of PS is equal to half of PS is equal to नहीं. हमें नहीं पता कि ये half है इसकी. We do not know whether Q is the midpoint of this line or not. हमें ये भी नहीं पता कि L इसका midpoint है या नहीं है. QS is equal to QL. बिल्कुल ठीक है. The result we are going to use is QS is equal to QL. आपके पास ये इसके equal है. Similarly, we can say that RT is equal to RL. ठीक है. Now I have to find out the perimeter. Perimeter of triangle PQR is PQ plus QR plus PR, right? और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो PQ I am writing PQ as PQ और मैं QR को लिख रही हूँ QL plus LR and PR as it is. ठीक है. What I have done, I have to find out the perimeter PQ plus QR plus PR. I have broken this into 2 parts. QR is equal to QL plus LR and remaining 2 terms, first and last term as it is. Now we are saying that QL is equal to what? QL is equal to QS. So इसकी जगह पे मैंने लिख दिया QS. So PQ plus QS and at the place of LR, I am writing TR और RT plus PR. ठीक है. अब यहाँ पे PQ plus QS किसके इक्वल हो गया आपके पास? PQ plus QS is equal to PS plus RT plus PR is RT plus PR is PT. ठीक है. अब ये बता दो आपके पास PS किसके इक्वल है और PT किसके इक्वल है? Both are 8 centimeter. So this is equal to 8 plus 8, that is 16 centimeter. Clear? So the perimeter of triangle PQR is 16 centimeter. Now in this question it was given that this is equal to 8 centimeter. Otherwise आपका जो question आता है, this can come in the form of theorem also. Prove that area of perimeter of triangle PQR is equal to double of PS. PQR is equal to double of PS. उसमें आप यूं का यूं बिल्कुल इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां तक करेंगे. PS plus PT की जगह पे भी PS लिख देंगे. So PS plus PS will be equal to 2PS. ठीक है. ये आपकी थ्योरम बन जाती है इस तरह से. Now come to the next question. I hope this is clear to everyone. Okay. चलिए read the next question. You are given a figure and you are given that the radius of the circle is 5 centimeter and PQ is 8 centimeter. Look, this is the question. We are given a circle
we have two tangents PT and TQ. PQ is 8 centimeter. This line joining the point of contact is 8 centimeter and the radius is 5 centimeter. We have to find out the length of the tangent, means either PT or QT we have to find out. This is the example in your book also and important one. थोड़ा सा मोल्ड करके भी आ जाता है. इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या गिवन है, दैट PQ is 8 centimeter and radius OP is 5 centimeter. We have to find out the value of PT. ठीक है. Now in this question what we are going to do is, देखो ये आपका ये जो triangle है, this line will divide it into two equal parts. ठीक है, क्योंकि ये कोड है और इसके ऊपर ये आपके दोनों तरफ रेडियस है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री जाएगा. आप इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर सकते हो. ठीक है. नाउ अगर ये पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, पूरा 8 सेंटीमीटर, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, राइट. और अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है, एक मिनट, हाँ जी, अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है, कैन वी फाइंड दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OM? OM विल बी 3 सेंटीमीटर. OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब मुझे ये मेरे पास यहाँ पर देखो 3 राइट ट्रायंगल्स हैं. अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले हाफ पार्ट की बात कर रही हूँ, वन राइट ट्रायंगल इज दिस, ठीक है. अदर राइट ट्रायंगल इज दिस, ये 90 डिग्री है, ठीक है. एंड थर्ड राइट ट्रायंगल इज दिस, जिसमें ये 90 डिग्री है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आप एक राइट एंगल का तो यूज कर चुके हो राइट ट्रायंगल में. यहाँ पर तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो. आपके पास 2 राइट ट्रायंगल्स रह गए. उन दोनों राइट ट्रायंगल्स में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, दोनों को आपस में इक्वेट करोगे, जो दो वैल्यूज आएंगी, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PT. ठीक है. PT क्योंकि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स में आ रहा है, एक तो इस ट्रायंगल में, एक हमें इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा. इस ट्रायंगल में PT लेने के लिए मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर है, बट आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दिस MT, so I will assume this value as X and let me take it as Y. Now my task is to find out the value of Y, और एक Y मेरा आ रहा है इस वाली ट्रायंगल में. So दोनों ट्रायंगल्स में फटाफट से लगाओ आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अप्लाई द थ्योरम इन PTM. ट्रायंगल PTM में आपकी पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी, आपका PTM में ये हाइपोटेनस है, सो यू कैन से दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर. ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई. ओके, एंड अब चलते हैं इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल OPT. Understood, Piyush? I will send the recording, not to worry. Okay, 16.3 करेक्ट आंसर मानसी. ओके, OPT में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी, देन यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Now what is hypotenuse here? This one is 3, this one is x, so this will be equal to 3 plus x whole square. You have two equations, दो equations में से आपने y की value find out करनी है. करो जल्दी से. ये भी this will be y square plus 25 is equal to 9 plus x square plus 6x. करो जल्दी से. Solve the question yourself. दो equations आपके पास आ चुकी हैं, and from these two equations find out the value of y. हाँ जी सुजल,
रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू कम टू योर ओन क्लास। बिल्कुल ठीक है आपका रिजल्ट मानसी। क्रिश 3 किसकी वैल्यू निकाली आपने? नो, नॉट 3 इज नॉट द वैल्यू। सुन लो, एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये गिवन है, दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लो, बट आई विल, देखो यू आर गिवन अ सर्कल। इस सर्कल के में आपके पास दो टेंजेंट्स हैं and they are saying that we have joined these two point of contacts each other. This is the center of the circle. They are saying this line is 8 centimeter. ठीक है, आपने इसको इसे ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, this is the radius and radius they are saying 5 centimeter. Then you are joining this point to this point. This is P, Q, O. Let this point is M. और ये आपका पॉइंट है T. In this question, we have to find out the value of PT. PT तक पहुंचने के लिए first of all, I have this complete 8 centimeter. तो मेरी ये 8 centimeter जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसको आपको दो इक्वल होते हैं, ये आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी टू लेंथी। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कि ये आपकी ये हाफ हाफ हो गई, आपको पहले ये वाली ट्राइंगल की और नीचे वाली ट्राइंगल की दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। उसमें आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, फिर आप छोटे वाली ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे, देन यू विल गेट PM इज इक्वल टू MQ। तो इसमें आपको सारा एक्सप्लेन नहीं करना, आप सीधा लिखोगे कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो ये आपकी 4 आ गई। अब हम नीचे वाला पार्ट छोड़ देते हैं, अब हमारा काम रहेगा सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाले पोर्शन में, सिर्फ ऊपर वाला लेकर चलोगे। इसमें आपके पास 3 राइट ट्राइंगल्स हैं, वन इज दिस। इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो बाकी दो ट्राइंगल्स हैं उनमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे ही आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए PT की वैल्यू। अब मेरे पास PT इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में फिर से ये राइट ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आई हैव दिस 4, और ये मेरे पास नहीं है, इसको मैंने ले लिया x और इसको ले लिया y, जो मुझे फाइंड आउट करना है। देन आई हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्राइंगल PMT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद मैंने अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम इस वाली ट्राइंगल, ये पूरी बड़ी ट्राइंगल में जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस x। ये जो पूरी है 3 प्लस x, सो 3 प्लस x होल स्क्वायर। इसको आपने ओपन कर दिया, यू हैव दिस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दो इक्वेशन से आपने y की वैल्यू तक पहुंचना है। ये यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, y स्क्वायर की वैल्यू आपकी इक्वेशन x स्क्वायर में, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, आपका सीधा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपकी डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू को इसमें पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y टू बी 20/3 और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16/3। क्लियर नाउ? I hope it is clear now. I am coming to the next question. Important questions हैं बेटा, दोनों ही पहले आ चुके हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, एक 4th चैप्टर का कोई पूछ रहा था, 4th चैप्टर के प्रॉब्लम सम्स जो है वो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ आई हैव द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर। एक आप रिजल्ट यूज करते हो, दैट इफ यू हैव अ सर्कल एंड अ टेंजेंट, then we say that the point of contact when joined with the radius of the circle, this is always perpendicular। हम ये कहते हैं कि ये जो एंगल हमेशा बनता है ये 90 डिग्री होता है। तो इसको अब हम कर रहे हैं प्रूव दैट why this angle is 90 डिग्री।
ठीक है, उसके लिए हमें नहीं पता कि ये 90 डिग्री है. लेट दिस पॉइंट इज O, this is A, this is B. AB is the tangent and let P is the point of contact, right? We have to prove that OP is perpendicular. उसके लिए अब हम क्या करेंगे? We will write the construction that we are taking any point on this tangent. आपने इसके ऊपर कोई भी point ले लिया, let this point is R, right? Now we are joining this point to O. ठीक है, अब आपने let this is Q, ठीक है, Q आपका नहीं आया, so I am taking this point of intersection as Q. अब यहाँ पर can I say that OP is equal to OQ? Reason बताओ. Why OP is equal to OQ? बता दो. Yes, they both are the radii. OP OQ के equal है. यहाँ पर OR, can I write that OR is equal to OQ plus QR? दोनों का सम है, right? So अगर ये दोनों का सम है, that means ये इन दोनों से बड़ा है OR. So I am saying that OR is greater than OQ. ये इससे बड़ा है, but OQ तो OP के equal है. That means I can say that OR is greater than OP. ठीक है, अब यहाँ पर आपने R कोई भी पॉइंट लिया था, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. ठीक है, आर्बिट्ररी पॉइंट हम ये बोलते हैं कि अगर हम कोई भी एक अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले रहे हैं और उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इसी तरह का अगर हम कोई और भी पॉइंट लेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा. दैट मीन्स इफ एट द प्लेस ऑफ R I take any other point on this line, then always I will get that this line is always greater than OP. ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए, OR की जगह आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा OP से बड़ा आएगा. That means OP is less than OR. इसका मतलब OP हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा हर उस लाइन से जो आप कैसे बनाओगे? By joining the point center to any point on the tangent. और अगर OP सबसे छोटा है, और सबसे छोटा क्या होता है? From a point to a line, the minimum distance is always perpendicular. ठीक है, हमेशा perpendicular ही सबसे छोटा distance होता है. So that is why we can say that OP is perpendicular to AB. Clear हो गया? बस यही हमने प्रूव करना था that OP is perpendicular. परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि O से लेकर AB तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है. दैट इज व्हाई दिस इज परपेंडिकुलर. क्लियर? चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट. अब दूसरा जो आ रहा है वो आपका इसी का कन्वर्स आ रहा है. कन्वर्स में क्या हो जाएगा? अभी आपने प्रूव किया है परपेंडिकुलर है. अगर आप टेंजेंट को ज्वाइन कर रहे हो सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर है. अब आप इसका ऑपोजिट प्रूव करोगे कि अगर आप यहाँ से ये इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये लाइन मतलब टच कर, ये लाइन आपने प्रूव करनी है दैट दिस इज द टेंजेंट. O, लेट दिस इज P, दिस इज A, B. और इसकी स्टेटमेंट आपकी किस तरह से आ सकती है? आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट फॉर यू. द क्वेश्चन इज अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस एंड द परपेंडिकुलर टू इट. आपके पास एक सर्कल, उसके ऊपर रेडियस के एंड पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सॉरी इसके एंड पॉइंट पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो हमेशा क्या होगा? दैट विल ऑलवेज बी द टेंजेंट. राइट? टेंजेंट का मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है, इससे ज्यादा पॉइंट्स पर ये इसको कट नहीं करेगी. राइट? दैट मीन्स हम ये प्रूव करेंगे कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, राइट, कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, वो हमेशा सर्कल से बाहर ही जाएगा, वो सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता. क्योंकि अगर ये इसको दो पॉइंट पर कट करती होती तो यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाता. बट हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा हमारे पास जो इस लाइन के ऊपर भी हो. इसकी राइट, वी आर
आपने फिर से एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, लेट पॉइंट वी हैव टेकन अ पॉइंट R ऑन द टेंजेंट, नाउ वी आर जॉइनिंग O टू R, ठीक है। आपके पास ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, दैट मींस वी कैन से दैट OP इज लेस देन OR, OR इज ग्रेटर देन OP, और OR जो है अगर ये OP से बड़ा हो गया, रेडियस से ही बड़ा हो गया, ठीक है, OR लाइन रेडियस से बड़ी हो चुकी है। और सर्कल की जब आपने डेफिनेशन की थी कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर वो पॉइंट्स आ सकते हैं सिर्फ जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो, दैट मींस या फिक्स डिस्टेंस पर, मतलब अगर मैं 5 सेंटीमीटर कह रही हूँ तो 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, वो वाले सारे पॉइंट्स की कलेक्शन क्या कहलाती है, आपकी सर्कल कहलाती है, राइट। हमने स्टार्ट किया था जब चैप्टर, तो हमने किया था दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is called a circle. तो यहाँ पर आपका OR जैसे ही OP से बड़ा हो गया, that means we can say that R lies outside the circle, क्योंकि उसके अंदर होने के लिए उसको R से छोटा होना चाहिए, बाउंड्री पर होने के लिए उसको R के इक्वल होना चाहिए, बट ये उससे बड़ा हो गया, that means the point R is outside the circle, right? तो हमने यही आपका प्रूव करना था कि अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले रही हूँ, वो हमारा सारा सर्कल से बाहर जा रहा है, सिर्फ हमारा P पॉइंट जो है वो ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस टेंजेंट के ऊपर भी है और इस सर्कल के ऊपर भी है। सो P is the touching point, only one point of intersection between the line and the circle. If it is a single point, that means it is a tangent. Clear हुआ? Clear हो गया? Let me know please. क्या समझ में नहीं आया? आंसी नहीं आया? ओके, दोबारा से एक बार सुन लो। आपको प्रूव करना है बेटा, ऑपोजिट क्वेश्चन है, उसका रिवर्स क्वेश्चन है दैट इफ यू हैव अ सर्कल, और इस सर्कल के ऊपर आपने एक, इस सर्कल के अंदर आपने एक रेडियस ली है, और इस रेडियस के एंड पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट अगर ये है तो ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए, राइट। हाँ, वो एक पॉइंट तो ये हमारे पास है पड़ा, दोनों का कॉमन पॉइंट। अब हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, वो ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो सर्कल के ऊपर भी हो और लाइन के ऊपर भी हो, ठीक है। टेंजेंट तो तभी बनेगी ना जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक है, और वो एक पॉइंट तो हमारे पास P है पड़ा ऑलरेडी, राइट। हमने ये प्रूव करना है कि इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो कॉमन नहीं होगा इस लाइन का और इस सर्कल का, वो पॉइंट या तो इसके सर्कल के बाहर या इस सर्कल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट नहीं होगा वो इन दोनों का। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, अगर वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री का भी है तो वो कॉमन पॉइंट है दोनों का, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ये भी पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। बट हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट, अगर मैं इसकी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, वो पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो सर्कल और लाइन के ऊपर कॉमन मिल जाए, राइट। सो उसके लिए मैंने ये पॉइंट लिया R और इसको O को R से ज्वाइन किया। नाउ क्योंकि P पर OP परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है। हम ले रहे हैं OR भी एक डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। अब क्योंकि OP सबसे छोटा है, दैट मींस OP इज लेस देन OR, ठीक है। OR बड़ी हो गई, अगर OR रेडियस से बड़ी है, अगर कोई भी लाइन, एक सर्कल है, इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और अगर एक इस पॉइंट से मुझे एक लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, तो जो पॉइंट होगा 6 सेंटीमीटर दूर वाला, वो सर्कल से बाहर ही चला जाएगा ना, ठीक, क्योंकि उसकी रेडियस 5 है। अगर कोई इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो वो उसकी बाउंड्री पर है, अदरवाइज वो उसके बाहर या अंदर है। डिस्टेंस बड़ा है तो बाहर है, छोटा है तो अंदर है। सिमिलरली वी आर सेइंग क्योंकि OR बड़ा हो गया रेडियस से, OR इज ग्रेटर देन द रेडियस, सो R lies outside the circle.
ठीक है, दैट मीन्स R इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of circle and line AB. ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। सिमिलरली हम कहते हैं कि इस तरह का अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट, दैट इज P, which is common to both the circle and the line. So P is this AB is the tangent. डेट शीट भेज दूंगी मैं आपको। क्लियर हो गया अब मानसी? चलिए, एक आप इस एक्सरसाइज का मुझे लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड इसके बाहर आपने एक ट्राइंगल बनाया। लास्ट टाइम आल्सो आई थिंक व्हेन वी डिड द क्वेश्चन the class was almost getting over and the same is happening today. This is the center, they're saying radius is 4. ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 90 डिग्री हो गया because tangent point of contact के ऊपर आपने लिया है, so this is 90 degree angle and they are saying such that the segments BD DC into which BC is divided by the point of contact D फिगर मेरे पास नहीं है यहाँ पर, C B and they are saying D is the point। और ये जो D पॉइंट है ये किस तरह से गिवन है कि ये इस लाइन को 6 और 8 है इसकी सेगमेंट्स, एक 8 सेंटीमीटर है, लेट दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड लेट दिस इज 6 सेंटीमीटर, लेट दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अदर टेंजेंट्स। मेरे पास ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 14 हो गई, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स मुझे फाइंड आउट करनी है। लेट दिस पॉइंट इज A, सो ABC इज द ट्राइंगल फॉर व्हिच आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, नॉट एरिया, आई हैव टू फाइंड आउट द साइड्स, राइट। सो मैंने क्या किया, इस सेंटर को इधर से और इधर से कर दिया ज्वाइन। Before I join, I can see that from point C I have two tangents CD and CP. अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गई 8 सेंटीमीटर। If this is 6 centimeter, this will also be 6 centimeter, right? अगर मेरे पास ये वैल्यू पता लग जाए, जो भी ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ये फिर से 2 टेंजेंट्स है। So I am assuming this to be x, this is also x. अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास AC आ जाएगा 8 plus x और AB आ जाएगा मेरे पास 6 plus x करके AB की वैल्यू आ जाएगी। So now my task is to find out the value of x, right? उसके लिए सिर्फ आप अपने दिमाग में ये याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने में आपने पूरी ट्राइंगल का एरिया 2 डिफरेंट वेज से फाइंड आउट करना है और दोनों को इक्वल रखना है एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। सो इस ट्राइंगल का एरिया एक बार मैं निकाल रही हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। एक बार मैं निकालूंगी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बाय डिवाइडिंग दिस ट्राइंगल इनटू 3 ट्राइंगल्स। और वो कैसे, एक मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ये बड़ा है कि ये है, एक मेरा ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, और एक ट्राइंगल बन जाएगा इधर वाला OCA, OBC, OBA। इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर मैं प्लस करती हूँ तो भी मेरे पास ABC का एरिया आएगा, राइट। सो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बड़े वाले ट्राइंगल की। इसके अंदर हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपके पास सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर मींस सम ऑफ द 3 साइड्स divided by 2. What are the sum of 3 sides? 14 plus 8 plus x plus 6 plus x. 14 plus 8 plus x plus 6 plus x divided by 2. और ये आपका प्लस करेंगे तो हो गया 28 plus 2x divided by 2. इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल दिया और उस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो आपके पास रह गया 14 plus x। ये आपने 2 कॉमन निकाला, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास s की वैल्यू क्या रह गई 14 plus x। और अब निकाल रहे हैं हम इसका एरिया अंडर द रूट s minus a, s minus b and s minus c। वैल्यूज पुट करते जाओ जल्दी से। s is 14 plus x, then s minus a फर्स्ट साइड 14 और फिर से s 14 plus x minus सेकेंड साइड is 8 plus x,
so it will be -8 minus x, and now फिर से s minus c, 14 plus x minus third side is 6 plus x, so -6 minus x, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14 plus x, यहाँ से आपका 14 से 14 कैंसिल हुआ, x रह गया, 14 minus 8 is 6, x से x कैंसिल, मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर भी आपका x से x कैंसिल, एंड 14 minus 6 is 8, तो ये आपके पास हो गया 48x into 14 plus x, ठीक है, ये हो गया। एक तरह से हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का। अब हम चलते हैं दूसरे वे पर, इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ कि मेरा एरिया जो आ चुका है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू अंडर द रूट 48x into 14 plus x। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी एज इट इज रख रही हूँ एरिया को, अदरवाइज आई कैन टेक सम वैल्यूज आउट ऑफ द रूट साइन। चलिए अब आते हैं दूसरी तरह से, पहले निकालते हैं ओबीसी का एरिया, तीनों को फिर प्लस कर देंगे। ओबीसी का एरिया आई एम अप्लाइंग 1/2 into base into height, so 1/2, what is the base, 6 plus 8 14, and height is this one 4, so ये हो गया आपका कैंसिल, 14 2 28, ठीक है। अब चलते हैं ओ, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस ट्राइंगल पे आ रहे हैं हम, OAC,